Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to lecture number 14 of the chapter Aldehydes, Ketones, and Carboxylic Acids. So, till now we had completed everything like the preparation and the chemical reactions and the nomenclature of aldehydes and ketones, and we were discussing the similar topics about the carboxylic acids. So, in the previous lectures, we had covered the preparation of carboxylic acids using different techniques. And in the last lecture, I also, summarized all of the ways by which we can prepare carboxylic acid using different other organic compounds. Now we proceed to the reactions which involve carboxylic acids. There are different kinds of reactions, so we will basically categorize them so that you can get to know that what is actually behind, what is actually happening behind the bar. So that is why. So the first category that we also started off in the previous lecture was the reactions involving the cleavage of OH bond. So I will just give you a gist of what we had discussed in the previous lecture, just a summary, and then we will move on to the new topic. So we were talking about reactions involving the cleavage of OH bond. ठीक है? तो इसमें basically the reactions of carboxylic acids with the metals and the alkalis, they were covered. ठीक है? तो when the carboxylic acid reacts with the metal, it simply forms the salt of that carboxylic acid. ठीक है? And similar case with the alkalis also, suppose it is reacting with NaOH, so it will form RCONA with the release of water molecule. And on the reaction with the weaker bases such as carbonates and the hydrogen carbonates, also it will form the salt of the carboxylic acid, which is known as the carboxylate, but with the release of CO2 gas. Now after these reactions, we were discussing about the how do we categorize या how do we actually categorize the acids कि कौन कितना strong acid है या फिर कौन weak acid है. ठीक है. So that is given by the pKa value of the acid. ठीक है. तो smaller the pKa value, the stronger is the acid. मतलब उल्टा होता है. ऐसा नहीं कि pKa value ज्यादा होगा तो वो stronger होगा. ऐसा नहीं है. It is reverse. So smaller the pKa value, this thing you need to remember. ठीक है. ये याद रखना है कि ये जो values होती हैं because they can be asked in the exam, right? Smaller the pKa, stronger is the acid. So we discussed that the acids which are having the pKa values which are less than 5 are said to be strong acids, and which are having greater than 5 are said to be the weak acids. Now carboxylic acids, they are weaker than the mineral acids. Mineral मतलब जो हम मतलब organic chemistry में जो acids हैं, they are carboxylic acids. ठीक है. अल्कोहल्स भी एसिडिक होते हैं, वो भी हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था. ठीक है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग, वी आर नॉट कंसिडरिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब हम नॉर्मल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, देयर यू हैव मिनरल एसिड्स, दैट इज HCl, HNO3, H2SO4. So these are known as the mineral acids. So those acids, they are stronger than the carboxylic acid. So if we talk about the trend, a general trend जो होता है acidity का, that is mineral acids are stronger. Then comes carboxylic acids in the organic chemistry. Then we have phenols. And then we have alcohols. So alcohols भी acidic होते हैं. They are also, they have this acidic property, but this acidic property is weaker as compared to the carboxylic acids. अच्छा, let me remind you one thing, that what does acidity actually mean? So acids are those compounds which are capable of releasing the proton. प्रोटॉन मतलब H प्लस की बात हो रही है. सो एवरी एसिड में आप देखोगे कि H प्लस जरूर होता है. ठीक है. तो जो एसिड्स which easily release the proton, they are said to be stronger acids. ठीक है. And which do not which have to release the proton not easily. I mean some strength is necessary, or ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है प्रोटॉन रिलीज करने में. दे आर सेड टू बी द वीकर एसिड्स. ठीक है. तो बेसिकली एसिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड which
which basically tells you that the release of proton, how is the ease of the release of proton. ठीक है, कितना easily proton remove हो रहा है, that is the given by the acidity. ठीक है, तो ये जो ट्रेंड मैंने लिखा है, दिस ट्रेंड इज बेसिकली फॉर द एसिडिटी ट्रेंड. ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज पीके के रिस्पेक्ट में लिखूं, पीके, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो पीके विल बी लेसर. तो ये जो पूरा सीरीज है दैट वुड गेट रिवर्स्ड. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इन द केस ऑफ पीके. ऑल्सो so basically now we will going to talk about the acidity कि different compounds की acidity हम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, not about not the numerical values of pK but कि सिर्फ कंपाउंड को देख के. ठीक है, अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड यू आर गिवन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड you have been asked you have to arrange these 5 carboxylic acids in the ascending order of the acidity. ठीक है, तो उस केस में आप कैसे जाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि मिनरल एसिड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अल्कोहल्स वीकर एसिड होते हैं. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी. ठीक है, किसी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. And why does it happen? It is because of the stabilizing of the conjugate base. So the delocalization of negative charge by either the inductive effect or resonance effects, वो compound पे depend करते हैं. तो अगर हम if we talk about this in very simple terms, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि acidity तब बढ़ती है जब acidity बढ़ती है मतलब प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस और लो नियर द कार्बोक्सिल कार्बन. ठीक है, तो अगर कार्बोक्सिल कार्बन के आसपास के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लो, मतलब कोई ऐसा सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है अपनी तरफ, तो कार्बोक्सिल कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ विल बी इजीली रिमूव्ड. ठीक है, तो उस केस में वी सेड acidity has been increased. Or just vice versa is the opposite. The case is when acidity decreases. कोई ऐसा सोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कार्बोक्सिल कार्बन के आसपास, then we say कि acidity has decreased. ठीक है, तो ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है which I said just right now. Now we will see कि ये अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे हैंडल होता है. So, okay, I'll write down the important facts. Otherwise, electron withdrawing groups, they increase the acidity of the carboxylic acid. अभी हम carboxylic acid के ही बारे में बात कर रहे हैं. Okay? So, electron withdrawing group अगर कोई भी लगा होगा carboxylic acid, carboxylic carbon के आसपास, तो वो acidity को बढ़ा देगा. And vice versa. ठीक है? तो अगर electron donating group है, तो वो acidity को कम कर देगा. Fine. So, this is an important fact. You should, और reason भी पता होना चाहिए. ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिंग. क्योंकि जब H+ निकल जाता है किसी एसिड से, ठीक है, और जो H+ रिलीज होने के बाद जो कंपाउंड बचता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, तो उस कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज जितना ज्यादा अच्छे से हो सकता है उतना ज्यादा एसिडिटी अच्छी होती है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली एंड में क्या चाहिए, हमें डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज चाहिए. जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात होगी. ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट डाउन अ सिंपल सीरीज जिसमें कि देयर आर सेवरल सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अटैच्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और क्या इफेक्ट ओवरऑल आता है एसिडिटी पे, लाइक इट विल बी क्लियर यूजिंग दिस सीरीज. आई विल ऑल्सो कीप ऑन एक्सप्लेनिंग कि ये जो मतलब ऑर्डर है ऐसा क्यों है. First of all, I will start with CF3COOH. तो पहले मैं लिख दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि ऐसा ट्रेंड क्यों है. ठीक है, अभी तक जो भी था वो एलिफैटिक ग्रुप के बारे में, मतलब एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट. नाउ हियर कम्स द एरोमेटिक थिंग.
ओके, सो आई विल नाउ एक्सप्लेन कि ये जो पूरा ट्रेंड है ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो भी हैलोजेंस होते हैं दे आर सेड टू बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आप टेबल देखोगे, जो टेबल होती है उसमें यू हैव FCl Br and I, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है ना, द लास्ट कॉलम इट इज एज FCl Br I, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अगर आप उस टेबल में देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है व्हेन यू गो फ्रॉम अबव टू बिलो। तो दैट मींस यू नो द फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, ठीक है, एंड क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो नाउ अब आप देखो पहले कंपाउंड में क्या है, यू हैव 3 फ्लोरीन एटम्स, F is fluorine, right? It is a halogen. So it is the most electronegative halogen, most electronegative compound. तो when you have 3F, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली द केपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो वो अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं ना शेयर हो रहे हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यही मतलब होता है। तो बेसिकली व्हेन यू हैव 3 फ्लोरीन एटम्स, सो तीनों फ्लोरीन एटम्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, दैट वुड बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा, और इस वजह से जो कंपाउंड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट विल बी हाईली एसिड, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा पहला वाला। आफ्टर दैट यू नो व्हेन यू कंपेयर दिस विद द सेकंड वन, यू हैव अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो भी 3 है, तो 3 है तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बट इट विल बी वीकर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, बिकॉज क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। फिर हमने थर्ड वाले में क्या किया, थर्ड वाले में वी हैव रिड्यूस्ड अ क्लोरीन एटम, ठीक है। पहले 3 क्लोरीन थे, अब हमने 2 क्लोरीन कर दिए, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट और कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। वो जो खिंचाव है वो पहले से कम हो जाएगा, एंड दैट इज वाई ये कम एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू पहला एंड दूसरा। नाउ NO2 इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एज यू मस्ट बी नोइंग कि NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है अपनी तरफ। So here also same thing, as I have already told you कि electron withdrawing groups they always increase the acidity. अब अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए यू मस्ट बी अवेयर कि यू नो विच वन विल बी हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और विच वन विल बी हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो एक ट्रेंड होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अरेंज। तो बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो साइनाइड से ज्यादा, मतलब नाइट्राइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मतलब ज्यादा पावर होता है उसके पास, so that is why NO2 is more electronegative as compared to the nitrile group. Not electronegative, sorry, higher electron withdrawing group effect is there. Now after all these groups we have again a single F. Single F मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, बट क्योंकि सिंगल F है, ठीक है, पहले वाले केस में क्या था 3 F थे, तो इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। Then you have a single chlorine atom, then you have bromine, as I told you bromine और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से वो बाद में आएगा। Then you have a simple carboxylic acid, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब जो you know when you are comparing it with the methanoic acid, मतलब the acid, the aliphatic acid which has only 1 carbon atom, तो उसे हम बोलते हैं methanoic acid, ठीक है। तो this one, let me mark it for you, this one is the methanoic acid and this is the base, ठीक है। आप इस एसिड से कंपेयर कर रहे हो कि आपने इस एसिड में कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो एसिडिटी कैसी हो गई, कम हुई कि ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस है, ये जो मीथेनोइक एसिड है इज द रेफरेंस ऑफ आवर यू नो कंपैरिजन। नाउ दिस Cl ग्रुप इज देयर, Cl ग्रुप इसके बाद वाले में यू हैव दिस Cl ग्रुप, इट इज ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नाउ इट इज अटैच्ड टू यू नो 2 कार्बन छोड़ के लगा हुआ है इसका मतलब वो मतलब it is attracting electron density, but because of these alkyl groups जो CH2 लगा हुआ है COH से,
बिकॉज ऑफ दोज अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पावर है दैट इज रिड्यूस्ड, और ये जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है. सिमिलर इज द केस फॉर C6H5COH. इट इज बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस हो रहा होता है, एंड बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग. तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग. So it will give away, with the help of resonance, COH group will attract the electron density from the benzene ring. ठीक है, तो वहां पे रेजोनेंस की वजह से ये इफेक्ट ज्यादा हो जाता है. सिमिलर इज द केस फॉर C6H5CH2, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप भी लगा है और एक रिंग भी लगा है. ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा था, फिर एक रिंग लगा था, अब दोनों लगे हैं, सो दैट इज व्हाई इफेक्ट विल बी मोर. Then you have CH3COH and CH3CH2COH. ठीक है, तो दिस इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, पहले वाले में क्या था, यू आर सीइंग यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, दो कार्बन एटम्स. ठीक है, तो इस वजह से वो इफेक्ट ज्यादा है. इस वाले केस में वो इफेक्ट कम है, और दैट इज व्हाई एसिडिटी इज लोअर एज कंपेयर टू पहला वाला. सो हाँ, सो दिस वाज in brief everything, what are the reasons that how can we actually just see a compound and say कि वो कितना एसिडिक होगा. ठीक है, तो यही अलग अलग फैक्टर्स होते हैं which you must notice when the question comes to you. Okay, the presence of the electron withdrawing group on the phenyl of the aromatic carboxylic acid also increases the acidity. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखो फिनाइल रिंग है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यू आर सीइंग हियर, दैट इज व्हाई उसका एसिडिटी कम है एज कंपेयर टू नॉर्मल मिथेनोइक एसिड, है ना. बट अगर हम बेंजोइक एसिड में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, एंड इफ दैट सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो एसिडिटी बढ़ेगा, और इफ दैट सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो एसिडिटी कम हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. दिस इज द बेंजोइक एसिड. ठीक है, एंड सपोज यू हैव OCH3 ग्रुप. OCH3 ग्रुप इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और द डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट दिस कार्बोक्सिल कार्बन. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी. ठीक है, H+ जो होगा, जो प्रोटॉन होगा ना, दैट विल बी bound, strongly bound to the carboxyl carbon. हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, रेफरेंस में बेंजोइक एसिड. नाउ acidity will be more in the case when you are having an electron withdrawing group. NO2 is a very strong electron withdrawing group. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और H+, the proton will get removed easily. This was the acidity trend. Let me remind you again that if the question says that you have to arrange the compounds on the basis of pKa value, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये जो ट्रेंड था ये एसिडिटी के लिए था. pKa वैल्यू के केस में नाइट्रो ग्रुप विल बी हैविंग अ हायर, नाइट्रो ग्रुप विल बी हैविंग अ लोअर pKa वैल्यू. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा. नाउ वन थिंग मोर अबाउट द एसिडिटी, कि जो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द फिनाइल और द विनाइल ग्रुप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द एसिड. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड टू द कार्बोक्सिल कार्बन. तो मतलब अगर डबल बॉन्ड है, जो विनाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है डबल बॉन्ड से अटैच्ड, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज greater, is having the high electronegativity value. So this was all about the acidity thing that I wanted to discuss, and it all comes under the first category of the chemical reaction which involve the cleavage of OH bond. क्योंकि OH bond
का क्लीवेज तभी होगा जब carboxylic acid is having the acidity property. Now, the second category of the chemical reactions, it's very simple. They are okay. Let me first write it down. The first category थी उसको मैंने A बोला था, so I am writing the second category as cleavage of COH bond. ठीक है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जो भी अभी फर्दर रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे. The important thing here is that whatever reactions we are going to discuss under this category, they all are related to the derivatives of carboxylic acid. डेरिवेटिव हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कौन कौन से होते हैं. दीज आर द एनहाइड्राइड, देन यू हैव ईस्टर्स, देन यू हैव अकाइल क्लोराइड्स और अकाइल हैलाइड्स व्हाटएवर, एंड देन यू हैव अमाइड्स. ठीक है, तो ये जो चार कैटेगरी होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So we will discuss कि ये जो second category है, that is basically how can we prepare the carboxylic acid derivative using the carboxylic acid itself. ठीक है, तो derivatives कैसे बन सकते हैं, ये है. तो acid से उसके derivatives बनाना है, तो कैसे बनाना है. ठीक है, we will discuss about all of the derivatives one by one. So the first subcategory is the formation of anhydride. ठीक है, तो what happens is कि carboxylic acids on heating with the mineral acids such as H2SO4 or HCl, मतलब जो भी mineral acids है, when you will heat the carboxylic acid, or either way is you can use P2O5, phosphorus pentoxide. ठीक है, तो with these two different compounds you can get the corresponding anhydride. ठीक है, तो first of all I will write down the reagents. reagents कौन कौन से यूज हो रहे हैं, either H2HO4 plus heat or you can use P2O5. ठीक है, to manufacture the anhydride. Now how does this happen? I will write out the reaction. Suppose you are having a carboxylic acid. ठीक है, ये दोनों, these are the two molecules of the same carboxylic acid. This is CH3COH, that is the ethanoic acid. तो आई एम राइटिंग इन दिस वे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर का जो एलिमिनेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड, एंड व्हेन यू यूज द एनी ऑफ द अबव रिएजेंट, तो क्या होगा, ओके आई विल डिनोट इट विद रेड. ठीक है, ए ग्रुप से ये OH जाएगा और एक ग्रुप मतलब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से OH जाएगा और एक मॉलिक्यूल से H. ठीक है, और जो बाकी के द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी कंबाइन. तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और बाकी बिल्कुल कंबाइन कर जाएगा कैसा. सो द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी. ठीक है, तो दिस इज द एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर. Now you are having two carbon atoms on both the side of this middle oxygen. ठीक है, जो मिडल में ऑक्सीजन एटम है इसके दोनों तरफ you are having two carbon atoms. So that is why जो इसका नेम होता है वो that would be ethanoic anhydride. ठीक है, you must be thinking कि ओवरऑल तो 4 कार्बन एटम है, फिर भी हम इथेनोइक बोल रहे हैं. So it is only we want to tell कि इथेनोइक मतलब दोनों तरफ इथेन ग्रुप अटैच्ड है. इथेन मतलब 2 कार्बन एटम्स है on both the sides of the oxygen. Now we will do a general reaction when we are having two different kind of groups. So obviously we will need 2 different acids for that purpose. ठीक है, अगर हमें दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप रखने हैं तो हमें 2 अलग टाइप के एसिड चाहिए होंगे, and the general reaction for that would be R plus R prime. ठीक है, these are the 2 different kinds of acids with P2O5, or you can use the first reagent also. Similar तरीके से यहाँ पे भी from one of the acid, one of the molecule OH will be removed, and from the other molecule H will get removed. The product would be. Now in this case I would like to just get your attention to the fact that because अगर आप 2 different तरीके के acids use कर रहे हैं, so in the mixture you will get the mixture of products.
ठीक है, बिकॉज दिस द एसिड ए इट कैन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ए, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अलग एनहाइड्राइड मिलेगा. सपोज एसिड बी इज रिएक्टिंग विद अनदर टाइप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड बी, ठीक है, सो यू विल गेट अनदर एनहाइड्राइड. और अगर ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यू विल गेट दिस एनहाइड्राइड. ठीक है, सो बेसिकली सो दैट इज व्हाई because of this mixture of products we do not prefer this kinds of reaction for preparing these kinds of mixed anhydride बोलते हैं इसको. ठीक है, क्योंकि अलग अलग आर हैं, इस वजह से that is called mixed anhydride. So this reaction is not preferred. The reason I have told you, क्योंकि in industries this separation cost and all is very high. ठीक है, so that is why we avoid using a technique which creates a mixture of products. So this was a formation of anhydride. Next we move on to the formation of esters. ठीक है, तो anhydride is the first derivative that we have already covered. So the next one is the formation of esters. ठीक है, formation of esters को in we also call it as esterification. ठीक है, तो काफी जगह you will see this name written esterification. That simply means that the esters are being formed. तो carboxylic acids when they are treated with alcohols or phenols in the presence of mineral acid like concentrated H2SO4 or HCl gas as a catalyst, they will form the ester. ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपर क्या हो रहा था, सिर्फ एसिड रिएक्ट कर रहा था दूसरे एसिड मॉलिक्यूल के साथ में, है ना, बट हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो सिंगल था. अभी क्या है, यू हैव टू काइंड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, वन इज एन एसिड मॉलिक्यूल एंड अदर इज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल. ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट in the presence of a catalyst, and that catalyst is acid, like a mineral acid basically, H2SO4 जो पहले भी था और HCl whatever, and then you will form ester. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा acid molecule है, let me write on carboxylic because here we are also using a mineral acid, plus alcohol molecule in presence of H plus mineral acid will give ester plus water. ठीक है, तो I will write down the general reaction, but I will write down the reaction in a different way because I want you to understand कि कौन से bonds टूट रहे हैं और कौन से bonds जुड़ रहे हैं. ठीक है, so because of this thing I will write it out using the different colors. So let me suppose this is the acid. ठीक है, plus you have alcohol. I will use red color for the alcohol वाले जो एटम्स हैं उसके लिए. ये हमारा मिनरल एसिड है, आइदर H2SO4 और HCl गैस. देन जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड. ठीक है, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड होगा इन द केस ऑफ एसिड्स दैट विल ब्रेक. ठीक है, अब ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, HOH इज बेसिकली वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड था COH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ. ठीक है, और फिर ये जो OR प्राइम है ऑफ द अल्कोहल, OR प्राइम ऑफ अल्कोहल विल गेट अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द एसिड. ठीक है, तो OR प्राइम यहाँ पे लग गया एंड द वाटर व्हाटएवर दिस the H molecule of this alcohol and the OH molecules of carboxylic acid, they will combine together to form the water molecule. ठीक है, तो this is a overall reaction, and I have also told you कि which bonds are actually breaking. So this was the formation of esters. Now the third derivative that we will form is formation of acyl chloride. अकाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl. ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द अकाइल हैलाइड दैट इज हैविंग द मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यही फॉर्म होता है. सो बेसिकली अकाइल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl. ठीक है, तो कैसे फॉर्म हो सकता है यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो बेसिकली हियर वी विल बी यूजिंग 3 different kinds of reagents, and that are PCl3 phosphorus trichloride, PCl5 phosphorus pentachloride or SOCl2. SOCl2 is thionyl chloride.
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद दीज रिएजेंट्स। ठीक है, तो जब जब भी आप रिएक्शन करवाओगे एसिड का इनसे, तो जो OH ग्रुप होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम। तो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द रिएक्शंस, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो तीनों के अलग होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई जनरल रिएक्शन नहीं है कि एक साथ मिल गया। So the byproducts are completely different. If you are using PCl5, PCl5 is phosphorus pentachloride. Then you will get RCO, OH is replaced by Cl. Then you have PO, Cl3 and HCl. If you are using PCl3, that is phosphorus trichloride, then you will get, because it is Cl3, so you will get 3 molecules of this plus फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO4 जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। सिमिलरली H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, नाउ इफ यू आर यूजिंग SOCl2, SOCl2 इज अगेन आई विल से, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज थायोनिल क्लोराइड, SO2 प्लस HCl। ठीक है, आई विल ऑल्सो राइट डाउन द नेम ओवर हियर, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज 3 रिएक्शंस, ठीक है, आपके पास 3 चॉइसेस हैं कि आप ये 3 रिएजेंट्स यूज करके यू कैन गेट द सेम प्रोडक्ट, बट आउट ऑफ दीज 3 रिएक्शंस द मोस्ट प्रेफर्ड वन इज दिस थायोनिल क्लोराइड वन। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन यू विल सी कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं SO2 और HCl, these both are in the gaseous phase। ठीक है, तो जो SO2 होती है और HCl गैस, they both of these are in the gaseous phase। बाकी दोनों में you are having POCl3 and H3PO3। ठीक है, so they are not gaseous। ठीक है, तो इस वजह से what happens is जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 और HCl, they are gaseous and so they can easily escape the reaction mixture। ठीक है, तो जब वो अपने आप ही when they are forming, so they'll escape on their own। You need not to do anything extra for separating RCOCl। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट इज RCOCl। ठीक है, बट इफ POCl3 बनेगा तो आपको POCl3 सेपरेट आउट करना पड़ेगा, H2PO3 भी सेपरेट करना पड़ेगा, बट SO2 और HCl अपने आप वो लोग एस्केप कर जाएंगे बिकॉज दे आर गैसेस। सो दैट इज व्हाई द लास्ट वन, द थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन, इज द मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन। नाउ द सेम थिंग आई आल्सो डिस्कस्ड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल्स, or you can say when we were talking about the preparation of alkyl halide using alcohols। ठीक है, तो वहां पे जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ROH। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देखो ना तो वही है बिल्कुल। इसमें भी क्या हो रहा है कि जो हमारा OH ग्रुप है उसकी जगह पे Cl आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट्स दे विल बी सेम, आई एम राइटिंग इट डाउन। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल में देखोगे तो ये OH ग्रुप जो है इसकी जगह पे Cl आ गया, एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड में भी CO ग्रुप के साथ कुछ नहीं हुआ, नो, ये जो सिर्फ OH ग्रुप है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय Cl। So the concept is same, the mechanism is same। ठीक है, the only thing is the products are different। So this was about the third carboxylic acid derivative। Now coming to the next derivative, and that is amide। तो अभी तक हमने क्या कवर किया? We covered the formation of anhydride, the formation of ester, and the formation of alkyl chloride। The only thing left is amide। amide क्या होता है? amide is RCONH2। ठीक है, एंड इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो क्या होता है? अब आप खुद सोचो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपको RCONH2 चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है यू विल नीड NH2 तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, सो दैट मीन्स द रिएजेंट शुड बी अमोनिया। ठीक है, तो द कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद का अमोनियम सॉल्ट देते हैं, एंड देन ऑन फर्दर हीटिंग दैट सॉल्ट वी फॉर्म अमाइड। ठीक है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट यू विल गेट द अमोनियम सॉल्ट एंड देन यू विल गेट द अमाइड। ठीक है, तो आई विल राइट डाउन द रिएक्शन वन बाय वन। We're starting with the aliphatic acid। Salt is basically
सी अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, राइट? तो आप ऐसा देखो ना कि ये जो एसिड है और ये बेस है, इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू सिंपली लुक इट एज acid plus base will give salt and water वाला reaction. ठीक है, which you have already you have studied in your lower classes. This is the ammonium salt and इसके साथ में you will also get water. ठीक है, अब आप क्या करोगे, you will simply heat. तो हीट करने से क्या होगा, ये जो वाटर है वो चला जाएगा और साथ में NH2। ठीक है, तो बेसिकली इस सॉल्ट से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। कैसे? 2 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड 1 ऑक्सीजन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वो H2O molecule has been removed, water molecule, and finally you get amide. And because it is having 2 carbon atoms, तो जैसे हम एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COH को, ये हमारा एसिटिक एसिड है, तो इससे जो अमाइड बना है दैट इज नोन एज असिटामाइड। ठीक है, तो एसिड इज एसिटिक एसिड एंड अमाइड इज एसिटामाइड। Now, a similar reaction will be for benzoic acid. ठीक है, फर्स्ट ये आपका सॉल्ट बन गया अमोनिया के साथ रिएक्शन में, एंड देन यू विल हीट टू रिमूव द, जो भी इसमें वाटर है, इस सॉल्ट में वाटर प्रेजेंट है तो आप उसको हीट करेंगे, एंड फाइनली यू विल गेट CuNH2। ठीक है, नेमिंग कैसा होगा, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, द रिएक्टेंट इज द बेंजोइक एसिड एंड सो प्रोडक्ट वुड बी बेंजामाइड। ठीक है, एसिटिक एसिड से एसिटामाइड मिलेगा, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड मिलेगा। नाउ देयर इज अ फेमस रिएक्शन, I mean not famous, but the product that it forms, that is very it has a lot of applications industrially, so that is why I am also going to refer that. So it is a dicarboxylic acid, aromatic है, but you are having 2 COH groups attached on the adjacent carbon atoms। ठीक है, तो when ये आपका वही रिएक्शन है, दोनों COH ग्रुप जो होंगे वो दोनों सॉल्ट बना देंगे, एंड आफ्टर हीटिंग दोनों ही अमाइड बना देंगे। ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, द ट्विस्ट हियर इज कि यहाँ पे एक और स्टेप होता है टू रीच टू दैट यूजफुल कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है, ये IUPAC नेम नहीं है, यू कैन ट्राई नेमिंग इट यूजिंग द IUPAC nomenclature as well, but this is the common name of this acid, this amide. It is a diamide, so this is thalamide, and when extra step you need to do, you need to strongly heat this compound. तो strongly heating में क्या होगा कि जो एक अमोनिया होगा, अमोनिया का ग्रुप अमोनिया, that will get removed। ठीक है, बिकॉज अमोनिया इज अ गैस, सो इट विल गेट रिमूव्ड एज अ गैस। तो जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट विल बी साइक्लिक इन नेचर। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे CO ग्रुप था और यहाँ पे भी CO ग्रुप था। ठीक है, ठीक है, CuNH2 था ना, तो जो एक NH2 है दैट हैज बीन रिमूव्ड, और जो बचा वाला NH है that will form a ring like मतलब cyclic closed structure बन जाता है, and this compound is known as thalamide। ठीक है, the spellings are very different, it is having LA and it is having LI। ठीक है, तो that can be a confusion, so you should pay attention to this। the first one जिसमें कि दोनों अलग अलग अमाइड है, that is thalamide, क्योंकि उसमें अमाइड है तो obviously वहां पे एंड में अमाइड आएगा, but the final product that is not an amide। ठीक है, that is imide, क्योंकि वो combined हो रहे हैं। ठीक है, so that is thalamide। so this is how you can prepare all of the carboxylic acid derivatives using the carboxylic acid। so all the 4 derivatives, the preparation of 4 derivatives have been discussed। so this was all about the second category। ठीक है, second category क्या था, which was involving the ब्रेकेज और द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, जिसमें कि OH अलग हो रहा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट हैज बीन। तो आप ये देखो कि सारे रिएक्शंस में व्हाट वाज हैपनिंग कि जो भी COOH वाला ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें OH हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सम और द अदर ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स।
ठीक है, आप OH को किसी भी एक दूसरी चीज से रिप्लेस कर दोगे तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो वी कम टू एन एंड ऑफ द सेकेंड कैटेगरी। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी। ठीक है, द थर्ड कैटेगरी इज जिसमें these reactions they involve the complete COH group। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्लीवेज नहीं हो रहा है। So whatever is happening with the COH group as a whole। ठीक है, तो इसमें हम you will be studying two kinds of reactions। The first one is the reduction, जिसमें COH group जो होगा वो reduce हो जाएगा, and the second one will be the decarboxylation reaction। So the first subcategory is reduction। ठीक है, तो आपको पता है कि when we were studying about the the aldehydes and ketones also we discussed कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी हमें एसिड मिल सकता है, और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी एसिड मिल जाता है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन से भी एसिड मिलता है, बट देयर बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, तो अगेन वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वी डू नॉट प्रेफर दीज काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। इस वजह से वी विल ओनली डिस्कस, मतलब अगर ऑक्सीडेशन से COH मिल रहा है तो COH के रिडक्शन से वी विल गेट अल्कोहल और एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द रिडक्शन ऑफ द COH ग्रुप। अब आई विल लाइक टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स, और उन तीनों रिएजेंट से इफेक्ट क्या होता है वो वी विल सी। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करने हैं, ये तो everybody must have understood। The first important reducing agent is LiAlH4, lithium aluminum hydride। LiAlH4, lithium aluminum hydride। ठीक है, and after that acetic anhydride, the acid hydrolysis। ठीक है, the hydrolysis in the presence of acid। So when you use this reducing agent followed by hydrolysis, you will directly get the primary alcohol। ठीक है, other thing is when you use diborane। diborane क्या होता है? B2H6, बोरेन इज BH3। ठीक है, तो उसका जस्ट डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, तो यू विल गेट B2H6। so this compound is called diborane, and here also you will get RCH2OH, the primary alcohol। क्योंकि LiLH4 जो है वो बहुत दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दैट इज वाई वो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। सिमिलरली द केस इज विद डाइबोरेन। ठीक है, बट डाइबोरेन के साथ एक ये चीज यू मस्ट रिमेंबर कि इट विल नॉट रिड्यूस द ईस्टर ग्रुप्स और द नाइट्रो एंड व्हेन द नाइट्रो ग्रुप और द हैलो ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, तो डाइबोरेन सबको रिड्यूस नहीं करता है, वो इस पर्टिकुलर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। इट इज नॉट फॉर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड थिंग इज, अनदर important thing is you must have heard about this reducing agent as well with LiLH4। ठीक है, ये दोनों काफी जगह पे साथ में यूज होते हैं। साथ में मतलब you can use either of these, मतलब चॉइस है, you can use either of these। but here if you are using sodium borohydride which is NaBH4 as a reducing agent with carboxylic acid, there will be no reaction in the sense कि reduction नहीं होगा। ठीक है, carboxylic acid will not get reduced using this compound, using this reducing agent। ठीक है, तो ये चीज काफी it can be used to trick you in the exams and all, कि they might ask the reaction, and people generally they think कि NaBH4 is a good reducing agent, so it will also reduce COH, but that is not the case। ठीक है, so this was all about reduction। We will always get the primary alcohols when using the reducing agents। Now the second subcategory of this is decarboxylation reaction। So we will and one more category is left, but that we will discuss it in the next lecture। So basically we will start with the decarboxylation and move on to the last category of the chemical reactions। Thank you।